Hi, CA Inter students, how are you? Are you the one who is planning to give September 25 exam, second group? Then this video is for you. I think I have heard from the various students that audit नहीं याद हो रहा और audit में पूरा दिन चला गया but कोई output नहीं आ रही. So I thought of making a short video where I have covered the chapters which you should pick up first to, gain the confidence in the audit and of course good marks in the audit also. The important thing here to notice that I have taken this chapter number from the study material provided by the ICI. So whatever the study material you are following, please check the number there and you can then proceed ahead with the chapters mentioned here. So the first chapter I have taken from the module 1 is the chapter 2 audit strategy, audit planning and the audit program. So this is the basic chapters which will help you to make a flow in the audit, and along with that I have mentioned the number of days because पूरा दिन नहीं लगाना and दिन लग भी गया तो at least हमारे पास कोई output आना ही चाहिए. So more than 3 days नहीं लगने चाहिए to cover this chapter, and when I say 3 days then 3 days should include your question bank as well as your MCQ part, because MCQs are very important to practice side by side and question bank से आपको पता चलेगा कि आपको कितना understanding हुआ है. Are you able to retain the things, are you able to retain the concepts, and are you able to present the answers as per the ICA suggested module. So when I mention the 3 days, so make sure that in 2 days you should cover up the part for concept, and then for the next day you can proceed ahead with the questions, right? And then for the second chapter you can pick up the risk assessment and the internal control. So this is bit lengthy but it is interesting and it requires a lot of conceptual clarity, and for this I have mentioned 4 days here. So in the 4 days I guess you would be able to complete the chapters, and along with that you should complete the question bank as well as the MCQs of the same, right? So this is the target which you should complete, like 7 days you must be able to complete all the two chapters, that is chapter number 2 and the chapter number 3, right? And then I have mentioned the breather for you here. For example, आपको लग रहा है कि अब ऑडिट बहुत ज़्यादा हो गया है एंड बहुत हेवी फील कर रही हो, देन आई थिंक यू कैन टेक अ ब्रीदर ऑफ द सेम. बट ब्रीदर का मतलब ये नहीं कि आपने ऑडिट ही छोड़ देना है, एटलीस्ट थोड़ा ऑडिट आपको करते रहना चाहिए. एंड देयरफॉर आई हैव मेंशन द चैप्टर 11 हियर. दिस इज फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 2. सो यू कैन पिक अप दिस चैप्टर एंड दिस इज वेरी शॉर्ट, बहुत बड़ा नहीं है, एंड आपको 2 days के अंदर अंदर ये हो जाएगा. 2 days भी मैंने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं इसमें बिकॉज ये सिर्फ 1 day का है, बट आई एम एज्यूमिंग कि आप कोई और भी सब्जेक्ट साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. सो दैट इज वाई आई हैव टेकन द 2 days, राइट? सो 2 days के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन बैंक भी फिनिश करना है एंड देन द MCQs भी फिनिश करने हैं. देन यू कैन पिक अप ऑडिट एविडेंस, अगेन वेरी लाइट चैप्टर. मैंने पहले ये दोनों चैप्टर्स इसलिए दिए बिकॉज आपको इनको करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, एंड देन यू कैन टेक 2 लाइट चैप्टर्स, एंड इसमें से वेटेज तो है ही है. ऐसा नहीं है कि ये 2 लाइट चैप्टर्स है तो इसमें से वेटेज नहीं है, इसमें से आई से बहुत बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. सो ऑडिट एविडेंस इज वेरी इजी चैप्टर. इट्स जस्ट कि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड यू कैन सी हेयर कि 3 days के अंदर अंदर आपको ये चैप्टर खत्म करना है. उसके बाद आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, लाइक स्टूडेंट फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी एंड वो एक ही बारी में कवर नहीं होता. So what you can do here, first of all you should keep the assertions on tape. So what are assertions? So we have different assertions for the P&L items and the different for the balance sheet items. So whatever the assertions you are checking, you should be able to keep those things on tips. And आप इसमें दूसरी चीज क्या कर सकते हो, सपोज करो आप इसमें रेवेन्यू टेस्टिंग के प्रोसीजर्स पढ़ रहे हो, तो when you are studying the revenue testing के procedures, so you should be able to correlate it with the balance sheet के debtors, because जब आप सेल कर रहे हो तो सेल से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. तो इफ यू आर डूइंग द क्रेडिट सेल तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटर्स के प्रोसीजर्स आप चेक कर रहे हो वो आप रेवेन्यू से थोड़े बहुत रिलेट कर सकते हो. बट वट विल हैपन, यू विल गेट अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू विल बी एबल टू कोरिलेट द थिंग्स एंड आपको रिटेन तो होगा ही होगा. सो स्प्लिट द आइटम्स, FSLI आइटम्स इन 5 days. मेक अ टारगेट कि आपको 5 आइटम्स दिन में कवर करने हैं या 6 आइटम्स दिन में कवर करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर द चैप्टर इन द 5 days. बट मेक श्योर दैट आफ्टर ईच डे, लाइक अगर आपने आज 5 आइटम्स करे हैं
तो एट द एंड ऑफ द डे आप उस 5 आइटम्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो एंड आप उस 5 आइटम्स के एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लो। बिकॉज अगर आप 5th डे के एंड पे सारे चैप्टर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे असर्शंस हैं, तो आपका बहुत मिस एंड मैच के चांसेस हो सकते हैं। सो टू अवॉइड दैट थिंग आप क्या करो, 5-5 दिन का स्प्लिट करो और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बैंक भी अटेम्प्ट करो। तो जब आप 5 फॉर एग्जाम्पल टुडेज ट्यूसडे राइट, तो आज आपने कोई 5 आइटम्स करे, आज आपने रात को क्वेश्चन बैंक करा उस 5 आइटम्स का। नेक्स्ट डे व्हेन यू पिक अप द 6 to 10th आइटम्स, तो मेक श्योर जब आप शाम को क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करोगे तो आप फिर पूरे 10 का कर लो, 5 ट्यूसडे के एंड देन 5 वेडनेसडे के, राइट। तो 5 वेडनेसडे में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एंड 5 जब आप ट्यूसडे के कर रहे हो तो उसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छा इसमें मैंने कल ये रिवाइज किया था। सो बट विल हैपन, एक तो आपका साइड बाय साइड चैप्टर रिवाइज हो गया, सेकेंडली आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट इज द ऑडिट रिपोर्ट विच इज आई थिंक वेरी सिंपल एंड easy to cover, and in this you can take 3 days maximum, and accordingly you have to attend the question bank and the MCQ. So you can see that in the 20 days you can complete the major part of the chapters of the audit, and the coverage is like 60 to 65 marks, which I think is not less, because 60 to 65 marks का अगर आपको क्वालिटी पेपर आता है तो आई थिंक बैंग ऑन। एंड जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने मॉड्यूल 1 का एक टॉपिक छोड़ दिया एंड थोड़े बहुत टॉपिक हमने मॉड्यूल 2 के छोड़े हैं, तो वी कैन कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द 7 to 10 days, and then you are like good to go. And next important thing is the number of revision, because most of the people are like कि हमें कितना रिविजन देना चाहिए, कितना हमें टेस्ट पेपर्स देना चाहिए। सो आई थिंक यू शुड टारगेट फॉर 3 रिविजन्स। 3 रिविजन्स तो देनी ही देनी है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट 2 रिविजन्स तो आपको देना ही देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट के बिना आपका तैयारी में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू पुट दैट इन कमेंट्स, and I will get back to you very soon. Thank you so much.